السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ بخیریت ہوں گے۔ طلباء، آج ہم ایس ایس ایل سی کا جو سماجی سائنس کے سبجیکٹ کا جو تاریخ سے متعلق آخری سبق ہے، آج ہم اس کے بارے میں تمام سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء، یہ جو تاریخ کا ہسٹری سے ریلیٹڈ ایک آخری لیسن ہے، باب نمبر 9، عالمی جنگیں اور ہندوستان کا کردار، اس کے متعلق ہم سوالات کے جوابات کیا ہے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلا سوال رہا، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے بھرتی کیجیے۔ پہلا سوال، پہلی عالمی جنگ ڈیش میں ختم ہوئی؟ کب ختم ہوئی؟ 1919۔ نیکسٹ دوسرا کوشچن ہے، ورسیلس معاہدہ ڈیش میں ختم ہوا؟ وہ بھی 1919 میں ختم ہوا۔ نیکسٹ، فاسٹ آرمر ڈیش تھا؟ کون تھا؟ مسولینی۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 4، دیکھیں کوشچن نمبر 4 کیا ہے، جرمنی میں نازی پارٹی کا قائد ڈیش تھا؟ کون تھا؟ ہٹلر تھا۔ نیکسٹ نمبر 5، دوسری عالمی جنگ ڈیش میں شروع ہوئی؟ 1939 میں دوسری عالمی جنگ شروع ہوئی۔ نیکسٹ نمبر 6، امریکی بحری بیڑا ڈیش پر جاپان نے حملہ کیا؟ کہاں پر حملہ کیا؟ پرل ہاربر۔ نیکسٹ نمبر 7، میسور لانسرز کے سربراہ کے طور پر ڈیش کو میدان جنگ بھیجا گیا؟ ریجمنٹ دارپی چامراجرز۔ نیکسٹ، درج ذیل سوالات کے جوابات گروہوں میں بحث کرتے ہوئے جوابات دیجیے۔ تو پہلا سوال رہا، کیا ہے دیکھیں، پہلی عالمی جنگ کے فوری اسباب بیان کیجیے۔ امپورٹنٹ سوال ہے، پہلی عالمی جنگ کے فوری اسباب بیان کیجیے۔ جواب، 28 جولائی کو آسٹریا کے شہزادے آرکڈیوک فرانسس فرڈینینڈ کا قتل ہوا۔ اس حادثے سے آسٹریا اور سربیا میں آپسی تناؤ زیادہ ہوتا گیا۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 9، نازی نظریہ نے جرمنی کو تباہ کر دیا، اس بیان کی تصدیق کیجیے۔ یہ بھی کیا ہے، امپورٹنٹ سوال ہے۔ نازی نظریہ جو تھا وہ جرمنی کو کیا کر دیا؟ برباد کر دیا۔ کیسے؟ جواب، ہٹلر نے چانسلر بن کر صنعت کاروں کی مدد کرتے ہوئے کمیونسٹ اور سوشلسٹ طاقتوں کو کچل دیا۔ نازی پارٹی کو واحد سیاسی پارٹی قرار دیا۔ ہٹلر نے جرمن ہی مقدس آریہ قوم دنیا میں ہے کہا۔ دنیا پر حکومت کرنے لائق صرف جرمنوں کو ہی قرار دیا گیا۔ ہٹلر کی جانب سے کیے گئے قتل اور نسلی تفرقات کو تاریخ میں افسوسناک مقام حاصل ہے۔ نیکسٹ کوشچن، دوسری عالمی جنگ کے وجوہات بیان کیجیے۔ جواب، پہلی جنگ عظیم کے سانحہ اموات اور واقعات کو بھولنے سے پہلے ہی 1 ستمبر 1939 کو پولینڈ پر جرمنی کے نازیوں کے حملے سے دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی۔ 30 سے زائد ممالک نے اس جنگ میں راست حصہ لیا۔ 1939 سے 1945 تک یہ جنگ ہوئی۔ مالدار اور آمر ملکوں کی تباہ کن پالیسیوں کے اثرات نے 1930 کے عشرے میں ہونے والی عظیم کساد بازاری سے یورپ اور امریکہ کی صورتحال بدترین ہونے لگی۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 11، میسور لارنس کے فوجی سرداروں کا نام بتائیے۔ جواب، کیا دیکھیں، ای ٹی تیاگراج، اے لنگاراج ارس، سباراج ارس، بی پی کرشنا ارس، میر ترابلی، سردار بہادر، بی چامراج ارس اور کرنل جی دیسراجا ارس، یہ تمام کیا ہے، میسور لارنس کے فوجی سرداروں کے نام ہیں۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 12، کیا ہے دیکھیں، دوسری جنگ عظیم کے نتائج کیا تھے؟ جواب، دوسری عالمی جنگ کا خاتمہ 1945 میں ہوا۔ اس کے نتیجے میں دنیا بھر میں بہت سے سیاسی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ بہت سے ممالک انگلینڈ کے ماتحت تھے، وہ سب کیا ہو گئے؟ آزاد ہو گئے۔ نیکسٹ کوشچن، تین مورتی چوک کہاں ہے؟ کہاں پہ ہے تین مورتی چوک؟ نیو دہلی۔ سوال نمبر 14، دوسری عالمی جنگ کے دوران برطانیہ نے ہندوستان کے وسائل کو کس طرح استعمال کیا؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، دیکھیں، دوسری عالمی جنگ کے دوران برطانیہ نے ہندوستان کے وسائل کو کس طرح استعمال کیا؟ جواب،
इंग्लैंड ने जंग के लिए ज़रई मसनूआत और सनअती सामान इस्तेमाल किए। हुकूमत के मातहत कारखानों ने अपनी टेक्नोलॉजी के मेयार को बढ़ाया और जंग से मुतल्लक़ सनअती सामान की पैदावार के हजम को बढ़ाया। इस तरह हथियारों की मकदार मेयार की तरक्की ने दूसरी आलमी जंग के आखिरी हिस्से के दौरान हिंदुस्तानी फ़ौजियों की तैयारी को एक किसी हद तक बढ़ा दिया था। नेक्स्ट 2015 का क्वेश्चन है ग्रुप ए और ग्रुप बी। हिटलर नाजी पार्टी, मुसोलिनी नेशनल फाशिस्ट पार्टी, ये दो पार्टियां थे और दो लीडर थे उसके। सर्द जंग का क्या मतलब है? जवाब, दो ग्रोहों के दरमियान सियासी, मुआशी, फौजी मौज़ूआत में पैदा होने वाला मुसलसल डर, खौफ, नफ़रत और बेरुखी और दुश्मनी की हालत ही सर्द जंग कहलाती है। 2015 का क्वेश्चन, दूसरी आलमी जंग के क्या असरात थे? 30 से ज़ायद ममालिक इस जंग में रास्त हिस्सा लिए। आलमी तंजीम का क़याम अमल में आया जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के नाम से जाना गया। दूसरी आलमी जंग के बाद अमेरिका दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क बनकर उभरा। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्च 2016 का क्वेश्चन है। देखें मार्च 2016 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, नाजी नज़रिए ने जर्मनी को तबाह कर दिया, साबित कीजिए। 2016 मार्च का क्वेश्चन है। जवाब, हिटलर ने चांसलर बनकर सनअतकारों की मदद करते हुए कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट ताकतों को कुचल दिया। नाजी पार्टी को वाहिद सियासी पार्टी करार दिया गया। हिटलर ने जर्मन ही मुक़द्दस सारिया कौम दुनिया में है कहा। दुनिया पर हुकूमत करने के लायक सिर्फ जर्मन को ही करार दिया। हिटलर की जानिब से किए गए क़त्ल और नस्ली तफ़रीक़ात को तारीख़ में अफसोसनाक मुकाम दिया गया। नेक्स्ट 2017 का क्वेश्चन है। हिटलर नाजी पार्टी, मुसोलिनी नेशनल फाशिस्ट पार्टी। नेक्स्ट, दुनिया में अमन कायम रखने के लिए जमीयतुल अक़वाम नामी तंजीम का आगाज़ हुआ मगर ये नाकाम रही, क्यों? जवाब, 1939 में दूसरी आलमी जंग शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाशिस्ट के खुसूसियात बयान कीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं आप, फाशिस्ट जो पार्टी है उसके खुसूसियात बयान कीजिए। जवाब, वालहाना कौमियत, दुश्मनों की तबाही, तशद्दुद की सताइश, नस्ली बरतरी, इश्तराकी नज़रियात का फैला, क़त्ल आम की हिमायत। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का क्वेश्चन है। नाजी नज़रिए ने जर्मनी को तबाह कर दिया, किस तरह बयान कीजिए। जवाब, आर्याई नस्ल की अज़मत और यहूदियों से नफ़रत, आमरीत हासिल करने के लिए ज़बरदस्त कौम परस्ती की वकालत की, डर पैदा करने के लिए ब्राउन शर्ट्स नामी तंजीम बनाई, इत्तेहादी मुल्कों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया, कंस्ट्रप्शन कैंपस और गैस चैम्बर्स, इत्तेहादी मुल्कों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग, दूसरी आलमी जंग में शिकस्त हुई। 2018 का क्वेश्चन रहा ग्रुप ए और ग्रुप बी। हिटलर जर्मनी, मुसोलिनी इटली से ताल्लुक़ रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखें, हिटलर को आम हुक्मरान बनने के लिए जर्मन सनअतकारों ने कैसे मदद की। हिटलर को आमर हुक्मरान बनने के लिए जर्मन के जो सनअतकारों हैं वो कैसे उनकी मदद की। जवाब, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट ताकतों का दौरा था, सियासी पार्टियों को ममनून करार दिया, मजदूर अंजुमनों को भी ख़त्म कर दिया। ये तमाम क्या है, इनके सनअतकारों ने जो क्या है मदद किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान ने वो कौन सी गलती की थी जिसके असरात का सामना आज भी हिरोशिमा और नागासाकी के लोगों को झेलना पड़ रहा है। जवाब, जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जब कब्ज़ा किया तो बदला लेने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2019 मार्च में पूछा गया है, वो क्वेश्चन क्या है देखें। पहली जंग अजीम के बाद अमेरिका की ज़राअती इलाक़ों में कमी आई, क्यों? जवाब, अमेरिका की मईशत में काफ़ी गिरावट आ चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाशिस्ट की खुसूसियात बयान कीजिए। पढ़ चुके हैं हम, ये जवाब पहले पढ़ चुके हैं। 2019 का क्वेश्चन देखिए, सर्द जंग के सही ममालिक का ग्रुप कौन कौन सा है। अमेरिका चीन, अमेरिका जापान, अमेरिका रूस, चीन रूस। सही ग्रुप जो है अमेरिका और रूस है। नंबर 2, हिटलर जर्मनी के ज़वाल का ज़िम्मेदार था, कैसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए, हिटलर जो है वो
जर्मनी के जवाल का एक अहम जिम्मेदार था कैसे? जवाब, हिटलर ने नाजी पार्टी वाहिद सियासी पार्टी का दर्जा दिया। दुनिया में जर्मनी मुक़द्दस आर्या कौम है। जर्मनों के तमाम मसाइल के लिए यहूदी ही अहम वजह हैं। जारहाना कौमियत के जज्बे को उभारा। गोबल्स नामी मखसूस वज़ीर का तकर्रुर भी किया। ब्राउन शर्ट्स नामी फ़ौज भी बनाई। इज्तिमाई वारदात को होलोकास्ट का नाम दिया। मार्च 2022 का सवाल है, दुनिया के 2 ताकतवर ब्लॉक में शामिल न होने वाले हिफाजती पॉलिसी को डैश कहा जाता है, नावाबस्ता तहरीक कहा जाता है। मार्च 2023 का सवाल है, पहली आलमी जंग के फौरी सबब क्या थे? ऑस्ट्रेलिया का शहजादा आर्कोडेव प्रिंस फ्रेंड का कत्ल। 2023 जून का सवाल है, इटली में कौमी फास्ट के बानी कौन थे? मसोलिनी। 3 मूर्ति भवन की अहमियत क्या है? मेवाड़, जोधपुर और हैदराबाद। लॉन्सर की जंगी यादगार। 2024 मार्च का सवाल है, 3 मूर्ति भवन में है, कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। पहली जंग अजीम की फौरी वजह क्या थी? जवाब, ऑस्ट्रेलिया के शहजादे आर्कोडेव प्रिंस फ्रेंड का कत्ल। 2024 जून का जो सवाल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, देखें, जो पिछले साल पूछा गया था आपको। पहली जंग अजीम के असरात क्या थे? जवाब, 1919 में जर्मनी के लिए ज़िल्लत आमेज़ मुआहिदा वर्सेल्स पर दस्तखत कर दिए। ऑस्ट्रिया, हंगरी और उस्मानो हुकूमतें अपने विकार को गंवा बैठे। जर्मनी के मज़ीद इलाक़ों ने अपनी पहचान तब्दील कर ली। इससे यूरोप का नक्शा बदल गया। कई छोटे छोटे ममालिक की तख्लीक हुई। मुस्तक़बिल में जंगों को होने बचाने के लिए जमीयती अक़वाम की तश्कील हुई। जर्मनी पर आयद किए गए जंग से वे नुकसानात के जुर्माने और दूसरे फ़ैसलों से वहाँ अवाम पर बहुत गहरा असर पड़ा। बेरोज़गारी की गुर्बत में नशोनुमा और तरक्की में घटाव आया। हिटलर जैसे जर्मन आमरी हुक्मरानों का उरूज हुआ। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका के इस्लाह बनाने वाले ताजरों ने कसरत से मुनाफा हासिल किया। अजीज़ तुलबा, ये था सोशल साइंस से जो कि तारीख़ से रिलेटेड है, वो एसएसएलसी का आखिरी सबक था। तो हम इस सबक के साथ साथ पूरे तारीख़ के तमाम असबाब को दोहरा चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आप इन तमाम 9 असबाब को आप अच्छे से सुनकर पढ़कर याद कर लीजिए, ताकि आपको पढ़ने समझने में आसानी हो सके।